Hello dear students, we are discussing Waiting for Visa. This is an autobiographical text written by Dr. B.R. Ambedkar. In the syllabus of BA first year, optional English, the syllabus prescribed by Swami Ramananda Tirth Marathwada University, Nanded. In the paper non-fictional prose, this is the topic that is been described by Swami Ramananda Tirth Marathwada University for the students of optional English. In this video lecture, we are going to discuss fourth part, that is polluting the water in the fort of Daulatabad. This is the fourth part of the autobiography of Dr. B.R. Ambedkar, and we are going to discuss about this part. So welcome to K. Gutte's online lecture series. You are here with myself, Dr. K.W. Gutte, your course educator. If you like this video, you can like, share and subscribe. So what this part is about? इस पार्ट में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर क्या कहने की कोशिश करते हैं कि polluting the water in the fort of Daulatabad. So this is the incident of 1934. ये जो एक प्रसंग है जिन्होंने बताया है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने बताया है, ये प्रसंग उनके जीवन में 1934 में घटित हुआ है और उसके बारे में अपने आत्मचरित्र में वो कहते हैं कि दैट सम co-workers with whom he was working for the depressed classes, these colleagues who were working with Dr. B.R. Ambedkar, they had desire to go for some sightseeing, and they decided the plan to visit Aurangabad, especially to visit the caves of Ajanta and Ellora, especially it is called Verul caves. The plan was decided to go and visit some places near Aurangabad, the place in Maharashtra. Now it was agreed that Dr. Ambedkar had to go to Nasik, and from Nasik they had to go to Aurangabad. Aurangabad, it was a town in Mohammedan state of Hyderabad that was the dominion of His Exalted Highness the Nizam. और ये जो प्रसंग उन्होंने बताया है कि ये 1934 की एक बात है और इनके साथ जो डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए काम करने वाले उनके जो को-वर्कर्स थे, उन्होंने एक इच्छा जाहिर की कि इनको डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी के साथ साइट सीइंग टूर के ऊपर जाने का है। इनको साइट सीइंग करनी है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी के साथ। उन्होंने एक प्रोग्राम तैयार किया कि कहाँ जाने का है। इट वॉज डिसाइडेड टू विजिट बुद्धिस्ट केव्स ऑफ वेरुल, और औरंगाबाद के नज़दीक जो अजंता एलोरा के केव्स है, बुद्धिस्ट केव्स है, वहाँ पे उन्होंने जाने का निर्णय लिया। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर would join the group of co-workers at Nasik, and from Nasik they had to go to औरंगाबाद। और ये औरंगाबाद जो एक सिटी है, ये जो टाउन है तब का, ये निज़ाम कालीन जो स्टेट है, स्टेट ऑफ हैदराबाद, इसका एक हिस्सा था उस वक्त। उसके बाद आगे क्या होता है, कैसे वो साइट सीइंग करते हैं, उनके साथ क्या प्रसंग घटित होता है, यह हम इसमें देखने वाले हैं। ऑन द वे टू औरंगाबाद दे हैड टू पास दौलताबाद, which was also in the state of Hyderabad. It is a historical place, as some of you may know that It is an ancient historical place
देयर इज अ हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट। औरंगाबाद के केव्स के तरफ जाते वक्त दूसरा एक ऐतिहासिक ठिकान उनको रास्ते में लगता है जिसका नाम है दौलताबाद। और ये भी प्लेस जो निज़ाम स्टेट है, स्टेट ऑफ हैदराबाद, उसी निज़ाम स्टेट में आता था। एंड दिस दौलताबाद वॉज ऑल्सो द कैपिटल सिटी ऑफ हिंदू किंग रामदेव राय। और ये जो दौलताबाद है एक ऐतिहासिक स्थान है जो हिंदू राजा रामदेव राय इनके शासनकाल में उनकी एक कैपिटल सिटी थी, उनकी ये राजधानी थी। तो उन्होंने तय किया कि वो इस स्थान को भी विजिट देंगे, दौलताबाद को भी, यहाँ का जो किला है वो भी देख के आगे जाएंगे। ऐसा उन्होंने एक प्रोग्राम बनाया। एंड नो टूरिस्ट व्हेन विजिट द केव्स ऑफ अजंता एंड एलोरा एस्केप दिस प्लेस। और कोई भी यात्री जो इस इलाके में आते हैं, इस एरिया में आते हैं, तो इस स्थान को देखे बिना वो नहीं जाते। सो द पार्टी of Dr. Baba Saheb Ambedkar also included this place, Daulatabad, in their plan to visit. They hired buses and cars, and they were about 30 in numbers. They started their journey first Nasik to Evla, because this is the place on the way to Aurangabad. Evla is the place on the way to Aurangabad. So first they came to Evla, and from Evla they had to come to Aurangabad. The program was not announced because it was incognito. They wanted to avoid difficulties which untouchable tourist has to face in outlying parts of the country, because the untouchable tourist might face some problems. That's why they had not revealed their program where they were visiting, and it was incognito. They didn't want any trouble while they were sightseeing. They only informed to those people where they had decided to halt, because they had to tell these people where they were going to halt. और इन्होंने एक अपना प्रोग्राम बनाया, लेकिन उस जो साइट सीइंग प्रोग्राम है उसके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं की, लोगों को ज़्यादा नहीं बताया, सिर्फ उन्हीं लोगों को बताया जहाँ पे वो रुकने वाले थे और जो लोग उनकी व्यवस्था करने वाले थे। एंड ऑब्वियसली एट दौलताबाद दे हैड ऑलरेडी इन्फॉर्म्ड टू सम पीपल दैट दे वर कमिंग। एट दौलताबाद पीपल वर वेटिंग फॉर डॉक्टर अंबेडकर एंड पार्टी at the entrance of the town. Their people asked them to have tea and refreshment, but they wanted to visit the fort before the dusk. और वो दौलताबाद के लिए निकले। दौलताबाद में उन्होंने पहले ही कुछ उनके लोगों को बताया था कि ये लोग आने वाले हैं, और उन्हीं लोगों को ये पता था। और जब वो वहां पे पहुंचे तो वहाँ के जो लोग थे उनका पहले से ही इंतज़ार कर रहे थे, और जब वहाँ वो पहुँचे तब उन्होंने चाय और नाश्ते के लिए उनको कहा कि आप थोड़ा सा चाय लीजिए और नाश्ता कीजिए और उसके बाद आप साइट सीइंग के लिए जाइए। बट दे वांटेड टू विजिट द फोर्ट बिफोर द डस्क, क्योंकि उन्हें शाम होने से पहले वो किला देखना था। दे लेफ्ट फॉर द फोर्ट, और उन्होंने वहाँ से प्रस्थान किया। And they said to these people that they would take the tea on return. They reached at the gate of the fort. और ये सभी लोग, अंबेडकर जी और उनके कलीग्स, कोवर्कर्स, वो जो किला है उसके फाटक पर आ चुके थे। Outside the gate there was a small tank of water. और फाटक के बाजू में एक छोटा सा पानी का एक टैंक था। And because of the journey, the faces and bodies and the clothes were full of dust. और इनकी लंबी जर्नी करने के बाद उनके जो चेहरे हैं उनके ऊपर धूल मिट्टी जमा हो चुके हैं, कपड़े खराब हो चुके हैं, और इसलिए उन्हें थोड़ा सा पानी चाहिए था
जो मुंह हाथ धो सके, और वहां पे जो टैंक था वो टैंक उन्हें दिखाई देता है। विदाउट मच थॉट सम ऑफ द मेंबर्स ऑफ द पार्टी वॉश्ड देयर फेसेस एंड लेग्स विद द वाटर फ्रॉम द टैंक। आफ्टर दैट एब्ल्यूशन दे वेंट टू द गेट ऑफ फोर्ट, और उन्होंने वहां की जो एक पानी की टंकी थी वहां से पानी लिया। ऑब्वियसली पानी तो देखने के बाद हम जो किसी सफ़र पे जाते हैं तब हम देखते हैं कि अगर कहाँ पे पानी है तो हम इमीडिएटली वो पानी को हम लेते हैं ताकि हम मुंह हाथ धो सके, फ्रेश हो सके। तो वैसा ही उन्होंने किया। एंड एट द सेम टाइम द ओल्ड मोमेडियन पर्सन केम देयर शाउटिंग, the Dades have polluted the water tank, the Dades have polluted the water tanks। और तभी जब इन्होंने when they washed their faces and legs and after that they went to the gate, they went inside the gate at the same time that one old Mohammedan came there and he was shouting that Dades have polluted the water, the Dades have polluted the water tank। और तभी वो जो एक बूढ़ा एक मुसलमान आदमी वहाँ पे चिल्लाते हुए वहाँ पे आता है और वो बोलता है कि धेड़ ने पानी गंदा कर दिया, धेड़ ने पानी गंदा कर दिया। Soon all young and old Mohammedans joined him and they all started to abuse them। अब तभी आसपास पे जो नौजवान और कुछ बूढ़े मुसलमान लोग थे वो भी उनमें शामिल हो गए और वो सभी मिलके इन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और उनके जो कोवर्कर, ये सभी की जो पार्टी थी साइट सीइंग के लिए आए हुई, इनको सभी को वो गालियां देने लगे और वो बोलने लगे, The Dades have become arrogant, the Dades have forgotten their religion, the Dades must be taught a lesson। और ये उनको गालियां देने लगे, भद्दी भद्दी गालियां देने लगे। वो बोलने लगे कि इनका दिमाग खराब हो चुका है, ये अपना धर्म भूल गए हैं और इनको सबक सिखाना पड़ेगा। That Dades have become arrogant, Dades have forgotten their religion and Dades must be taught a lesson। ऐसा वो बोलने लगे। They told them that they didn't know the local customs। और ये सभी लोग बोल रहे कि हमें यहाँ की जो लोकल प्रथा परंपरा है इसके बारे में कुछ जानकारी नहीं थी, हमें इसके बारे में पता नहीं था, वो ऐसा बोल रहे हैं। बट दे वर नॉट इन मूड टू लिसन, दे टर्न द फायर ऑफ देयर wrath against local untouchables who by the time had reached at the gate। और तभी कि वहाँ के जो लोकल है जिन्होंने उनकी व्यवस्था करनी थी वो लोग भी तब तक वहाँ पे आकर पहुँचते हैं। और ये लोग, ये जो मुसलमान लोग हैं जो उस किले के दरवाजे पर खड़े थे, ये इनको भी अभी उनके ऊपर गुस्सा निकाल रहे हैं कि उन्होंने अपना गुस्सा इन स्थानिक लोगों पर, अछूत लोगों पर निकाला। और वो बोलने लगे कि why didn't you tell these outsiders that the tank could not be used by untouchables। तुमने इन लोगों को क्यों नहीं बताया कि अछूत लोग इस पानी की टंकी को इस्तेमाल नहीं कर सकते। डॉक्टर अंबेडकर सेड दैट these local people were not there when they washed their faces। और अंबेडकर उनको बोलते हैं कि आप इन स्थानिक लोगों को कुछ मत बोलिए क्योंकि ये लोग वहाँ पे नहीं थे जब हमने पानी वहाँ का इस्तेमाल किया, तो इन लोगों को कुछ आप मत बोलिए। एंड दे सेड, उन्होंने बोला कि इट वॉज देयर ओन मिस्टेक बिकॉज दे सेड दैट दे एक्टेड विदाउट इंक्वायरी। और वो बोलते हैं कि दिस इज नॉट देयर मिस्टेक, दिस इज आवर मिस्टेक बिकॉज वी एक्टेड विदाउट एन इंक्वायरी। इन स्थानिक लोगों की कुछ गलती नहीं है इसमें, हमने किसी से पूछे बगैर इस टंकी का पानी ले लिया और इसमें इनकी कुछ गलती नहीं है, आप इनके ऊपर गुस्सा मत होइए, ऐसा वो कहते हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर उन लोगों को बोलते हैं। बट मोमेडियंस वे आर नॉट प्रिपेयर टू लिसन, दे केप्ट अब्यूजिंग बोथ द पार्टी ऑफ बी आर अम्बेडकर एंड द लोकल अनटचेबल पीपल।
और उन्होंने जारी रखा, इनको भला बुरा कहना शुरू रखा, उनको खराब गालियां देना शुरू रखा. They abused in a very vulgar language. There could have been a riot or murders, but they restrained themselves. They never wanted to indulge in a criminal activities, and even they never wanted to have abrupt end of their tour. और ये प्रसंग वहां पे घटित हुआ कि उन्होंने किले के फाटक के बाहर एक पानी की टंकी है, वहां से पानी लिया, मुंह हाथ धोया और वो साइट सीइंग करने के लिए वहां पे जा रहे हैं. तभी एक बूढ़ा मुसलमान व्यक्ति वहां पे आता है और वो उनको बोलता है कि धेड ने पानी की टंकी दूषित कर दी, गंदा कर दिया पानी टंकी का. ऐसा वो बोलने के बाद वहाँ पे दूसरे लोग भी उनके साथ शामिल होते हैं और इनको गालियाँ देने लगते हैं. वहाँ पे शायद बहुत बड़ा दंगा हो सकता था, कुछ खून खराबा भी हो सकता था, लेकिन इन्होंने अपने ऊपर नियंत्रण रखा. They never wanted to indulge in criminal activities and even they never wanted to have abrupt end of their tour. और वो उनकी यात्रा अजीब तरीके से खत्म नहीं करना चाहते थे और वो किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में इंडल्ज नहीं होना चाहते थे, इसलिए वो शांत रहना उन्होंने पसंद किया. One young Muslim was saying that everyone must conform to religion, meaning that untouchables must not take water from the public tank. और वहाँ पे एक नौजवान मुसलमान वहाँ पे उनको बता रहा है कि हर एक व्यक्ति को अपना धर्म निभाना चाहिए. ये सुनकर डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी का धैर्य खत्म हो गया. एंड ही सेज, इज दैट व्हाट योर रिलीजन टीचेस? कि क्या तुम्हें तुम्हारा धर्म यही सिखाता है? वुड यू प्रिवेंट एन अनटचेबल इफ ही बिकम्स अ मोमेडियन? कि तुम्हारा धर्म तुम्हें क्या यही सिखाता है? और तुम ये तब भी करते अगर कोई अछूत व्यक्ति अपना धर्म परिवर्तन करके मुस्लिम धर्म अगर वो स्वीकार करता उसका, तो भी तब भी तुम यही करते. क्या तुम उस अछूत व्यक्ति को पानी निकालने से तब भी रोकते अगर वह मुसलमान बन जाता? They had no answers to these questions. They stood silent. और तब उनके पास इन सवालों का कोई जवाब नहीं था, वे सब चुपचाप खड़े रहे. डॉक्टर अंबेडकर said to the guard, "Can we get into the fort or not? Tell us. If we can't, we don't want to stop." और अंबेडकर जी ने गुस्से में आकर उस सुरक्षा सैनिक से कहा कि क्या हम इस किले को देखने जा सकते हैं या नहीं? तो हमें बताओ. अगर हम अंदर नहीं जा सकते तो हम यहाँ रुकना नहीं चाहते. हमें बताओ हम अंदर जा सकते हैं या नहीं. अगर नहीं जा सकते तो हमें यहाँ एक पल भी नहीं रुकना है. एंड देन गार्ड आस्क्ड द नेम एंड आस्क्ड टू राइट इट ऑन द पेपर. तभी उस गार्ड ने B.R. अम्बेडकर जी से अपना नाम पूछा और उनको एक कागज दिया और कलम दिया और उसके ऊपर उन्होंने अपना नाम लिखने के लिए कहा. ही टुक to the superintendent inside and came out. He took that paper inside the fort and he had shown this paper to the superintendent and then he came out. They were told that they could go inside but they could not touch water in the fort. An armed soldier was ordered to go with them to see that they did not break the law made by them. उनको जाने की इजाजत तो दे दी, लेकिन उनके साथ एक हथियार से लैस एक सैनिक दे दिया गया ताकि वो देख सके कि उनमें से कोई आदमी उनके कानून का, उनके आदेश का उल्लंघन तो नहीं कर रहा है. कि कहीं पे वो पानी है, अंदर कहीं पे पानी है तो उसे वो गंदा तो नहीं कर रहा है. ये देखने के लिए उन्होंने उनके साथ एक सिपाही भेजा जो हथियार से लैस है. By this example in his life, he had experienced this incident. This is a very insulting and atrocious when they went there to visit Daulatabad fort. It was a very insulting incident in his life. तो ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद. Thank you for watching this video.